بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے انٹرویوز کے بعد نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی اس سلسلے میں جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان نے نئی تقرری کا فیصلہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے طویل مشاورت کے بعد کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی مدت میں 19 نومبر تک توسیع ہو گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم 20 نومبر سے بطور ڈی جی آئی ایس آئی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ عباس شبیر رپورٹ کریں گے۔ سیاسی و عسکری قیادت نے طویل مشاورت کے بعد نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹا لیا۔ بنی گالہ میں وزیر اعظم سے آرمی چیف کی 1 on 1 ملاقات کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ موجودہ ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید 19 نومبر 2021 تک عہدے پر برقرار رہیں گے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے چارج 20 نومبر 2021 کو سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے وزارت دفاع کی اسمبلی میں نامزد تمام افسران کے انٹرویوز کیے۔ بنی گالہ میں وزیر اعظم سے آرمی چیف کی 1 on 1 ملاقات میں حتمی مشاورت ہوئی، جس کے بعد عمران خان نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے تقرر کی منظوری دے دی۔ وہ جو افواہوں کا ایک طوفان کھڑا کیا گیا تھا وہ دم توڑ گیا۔ پاکستان کی عظیم افواج اور پاکستان کے منتخب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سب ایک پیج پہ ہیں۔ آرمی چیف نے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو نیا ڈی جی آئی ایس آئی بنانے کا فیصلہ 6 اکتوبر کو کیا تھا، جس کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم ہاؤس سے 20 روز بعد جاری کیا گیا ہے۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کنگز کالج لندن اور این ڈی یو سے تعلیم حاصل کی ہے۔ روایتی اور غیر روایتی خطرات کے ماحول میں کمانڈ کا بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کے دوران آئی جی ایف سی بلوچستان رہے ہیں۔ کرکٹ اور باسکٹ بال کے بہت اچھے کھلاڑی بھی ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ نیا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم عسکری میدان میں بے مثال صلاحیتوں کے حامل۔ پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ اینٹی ٹینک بٹالین میں کمیشن لیا۔ کنگز کالج لندن اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ماسٹرز ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ کمانڈ سٹاف اور انسٹرکشنل اسائنمنٹس کا وسیع تجربہ بھی نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے عسکری کیریئر کا حصہ۔ روایتی اور غیر روایتی خطرات کے ماحول، مغربی سرحد اور ایل او سی پر کمانڈ اور بلوچستان میں طویل عرصہ خدمات انجام دے چکے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عضب اور آپریشن رد الفساد کے دوران آئی جی ایف سی بلوچستان تھے۔ جنوبی وزیرستان کرم ایجنسی اور ہنگو میں انفنٹری بریگیڈ کی کمانڈ کی۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم پی ایم اے سٹاف کالج اور این ڈی یو میں انسٹرکٹر کے فرائض بھی انجام دے چکے۔ سٹاف کالج کوئٹہ میں بطور کمانڈنٹ کراچی کور کے چیف آف سٹاف کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں۔ ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی کا عہدہ ملنے سے قبل کور کمانڈر کراچی کے منصب پر کام کر رہے تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم دوڑ، باسکٹ بال اور کرکٹ کے بھی بے حد شوقین ہیں۔ اہم پریس کانفرنس کی بات کریں گے۔ فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے علاوہ کالعدم تنظیم کے تمام مطالبات مان لیے ہیں۔ مظاہرین نے آج راستے کھولنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن راستے نہیں کھلے۔ رات کو دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ سیاسی اور عسکری قیادت کے اہم اجلاس کے بعد وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس بریفنگ، کہا حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں۔ پاکستان میں لیبیا، عراق، یمن یا شام جیسی بدامنی نہیں چاہتے۔ پرائم منسٹر صاحب نے رپورٹ مجھ سے طلب کی۔ اس میٹنگ میں بھی چیف آف آرمی سٹاف، ڈی جی آئی ایس آئی سارے موجود تھے، جس میں ہم نے جو ٹی ایل پی کے ساتھ بات کی تھی اس میں ساری باتوں پر رضامندی ہے۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آج راستے کھول دیں گے، جو ابھی تک انہوں نے نہیں کھولی۔ ان کا ٹاپ ایشو جو ہے، نمبر 1 ڈیمانڈ ہے فرانس ایمبیسی کا اور فرانس ایمبیسڈر کا یہاں سے انخلاء ہے۔ اس مسئلے پر عمران خان کی حکومت اور پاکستان کی افواج ایک پیج پر ہے، اور اس پیج پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کسی ایمبیسی کو بند کرنے یا اس کے ایمبیسڈر کو نکالنے کی پوزیشن میں۔ اس کے علاوہ تمام مسئلے ٹھیک ہیں۔ ایک مسئلہ جو ان کا ٹاپ ڈیمانڈ ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں، باقی سارے مسئلے ہم نے ایکسیپٹ کیے۔ 2 پولیس والے شہید بھی ہوئے ہیں، 70-80 زخمی بھی ہیں، 2 اس میں کریٹیکل بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے پکڑے گئے تھے، اس پہ بھی غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 4 شیڈیول پہ بھی تیار ہیں، سب چیزوں کے لیے تیار ہے۔ یہ ہم نے ان کے سامنے رکھ دی ہے، اس پر وہ غور کرے۔ کالعدم تحریک لبیک کے کارکنان لاہور سے کیسے نکلے؟ سینٹرل آفس میں اعلیٰ حکام نے پولیس افسران کی خوب کھچائی کی۔ مظاہرین کو اسلام آباد پہنچنے سے روکنے کے لیے دیگر شہروں میں رابطہ سڑکوں پر خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔
कलअदम तहरीक लब्बैक का मुमकिना मार्च रोकने में लाहौर पुलिस की नाकामी, अफसरान की शामत आ गई। सेंट्रल ऑफिस में पुलिस अफसरान की सरजनिश की गई। सीसीबी लाहौर समेत आला अफसरान मुजाहिरीन के शहर से निकलने पर खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे सके। 4 DPO समेत 6 अफसरान की खिदमत RPO रावलपिंडी के सुपुर्द कर दी गयी। मुजाहिरीन लाहौर से तो निकल गए, मगर अब इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए दीगर शहरों में राब्ता सड़कों पर कहीं खंदकें खोदी जा रही हैं, तो कहीं रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। मुरीद के में 5 रोज से GT रोड बंद है। सड़कें अभी कुछ खुली हैं, कुछ नहीं खुली। जिन्होंने लंबे सफर पे जाना है वो तो जाहिर है बेचारे उधर के उधर ही रह गए हैं, ना आगे जा सकते हैं। कंटेनर वगैरह लगे हुए हैं। परेशानी के अलावा और कुछ मिल नहीं रहा, और गवर्नमेंट की वजह से बड़ी सख्त परेशानी फेस करनी पड़ी। सख्त तकलीफ है लोगों को जाने जाने में, और सारा दुश्वारी है बहुत ज्यादा। दरियाई झेलम के दोनों अतराफ भी खंदके खोदने का मंसूबा है। पुल पर तामीर, हिफाजती दीवारें तोड़ दी गयी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। 3-4 दिन से इधर खड़े हैं, ठीक है। हमारी गाड़ियों के कागज ले लिए हैं, चाबियां ले ली हैं। गुजरात टोल प्लाजा के करीब बनाई गई खंदकों को भी बंद नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मुसाफिरों का अपनी मंजिल पर पहुंचना मुहाल हो गया। क्या नवाज शरीफ से फिर कोई डील हो रही है? अहम शख्सियत की लंदन में लीगी कायद से मुलाकातों की खबर पर नून लीग तकसीम हो गई है। मियाँ जावेद लतीफ़ तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर के लोग हों या फिर बाहर के, नवाज शरीफ से राब्ते में हैं और इन दिनों राब्ते तेज़ हो गए हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ऐसी किसी भी मुलाकात की तरदीद कर रहे हैं। माजरा क्या है, ये रिपोर्ट देख लेते हैं। जारहाना बयानिया और खुफिया मुलाकातें, मुल्क की सियासत में एक बार फिर डील की बातें। मोतबर लीगी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ से लंदन में खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले 2 माह में अहम मुल्क की शख्सियत ने मियाँ साहब से 5 मुलाकातें की हैं, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ ने फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया है। जराये का कहना है अभी बातचीत चल रही है, फरीकैन किसी डील तक नहीं पहुँचे, लेकिन मुस्तकबिल में राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक हुआ है। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने भी तस्दीक की कि नवाज शरीफ लंदन में मुलाकातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, सबके राब्ते हैं नवाज शरीफ से, और इन दिनों में ज्यादा तेज हैं। लेकिन दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी ऐसी किसी भी मुलाकात की तरदीद कर रहे हैं। ऐसी कोई मुलाकात न है, जो बात होनी है वो आवाम के सामने होनी है और रिकॉर्ड पर होनी है। खुफिया मुलाकातों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून किसी डील का, किसी सौदे का, किसी गैर आईनी काम का हिस्सा नहीं बनेगी। अहम मामले पर नून लीग के 2 अहम रहनुमाओं के अलग अलग बयानात बता रहे हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसी बुलेटिन में जानिए, बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस कट गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तनकीद करते हुए नए कानून के तहत कोई रिलीफ ना लेने का ऐलान कर दिया। महंगाई की दुहाई भी दे दी। कहा पेट्रोल इमरान खान महंगा नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ IMF का हुक्म मान रहे हैं। कहा मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। कानून ऐसा बनाया गया जिसके अंदर इतना इबाहम है कि जज भी परेशान है कि हम फैसला करें तो क्या करें, क्योंकि जो कानून में लिखा गया है उसकी रूह से ये केस अब रहते नहीं है। बहरहाल हमने तो ये फैसला किया कि हम इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई रिलीफ नहीं मांगेंगे, ना मांगने की जरूरत है। मैं वज़ीर-ए-आज़म के बयान को ना कभी सुनता हूँ ना देखता हूँ, क्योंकि वो अकल पर मबनी नहीं होते। पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामलात जो हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत ही तय हो सकते हैं, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। पिछले 3 महीने में जो महंगाई का आलम है, 15% रुपए की कीमत गिर गई है। आज हर शख्स महंगाई से तंग है। पेट्रोल की कीमत इमरान खान नहीं बढ़ा रहा, ये IMF बढ़ा रहा है। आज मुल्क के मामलात IMF चलाता है, इमरान खान नहीं चलाता। जो वो हुक्म करते हैं वो मानना पड़ता है। आप घबराए नहीं तो हुकूमत चलती रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल हम तो सारे घबरा रहे हैं। और आज मुल्क के मसाइल का सिर्फ एक हल है कि फौरी और शिफाफ इंतखाबात। ये भी जानिए, LNG रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा तमाम शरीक मुल्ज़िमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का सहारा ले लिया। तमाम मुल्ज़िमान के वकला की केस ट्रांसफ़र करने की सदा पर नैब का एतराज़। प्रोसिक्यूटर ने कहा पुराने केसेस पर ऑर्डिनेंस का इतलाक हो तो तमाम पुरानी सजाएं मुतनाज़ हो जाएंगी। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं।
LNG रेफरेंस में ड्रामाई मोड़, शाहिद खाकान अब्बासी तरमीमी ऑर्डिनेंस से रिलीफ लेने से इनकारी, बेटे अब्दुल्ला खाकान ने ऑर्डिनेंस का सहारा ले लिया। तमाम शरीक मुल्ज़मान के वकला ने अदालती कार्रवाई पर एतराज उठा दिया, मौक़िफ़ अपनाया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये केसेस अब ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर यहाँ कार्रवाई जारी रहती है तो वो खिलाफ कानून होगी। साबिक मेंबर ओगरा आमिर नसीम के वकील का कहना था कि अब तो मरकजी मुल्ज़म शाहिद खाकान पर भी ये केस नहीं बनता, बाकी मुल्ज़मान तो तांगे की सवारियां हैं जिन्हें साथ बिठा दिया गया। नैब के पास अब माली फवायद के सबूत होना लाजिम है। MD एयर बलूच चौधरी असलम ने अब्दुल्ला खाकान को दी गई रकम माली मदद करार दे दी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मौक्किल ने मुश्किल वक्त में शाहिद खाकान की मदद की, जो उनका कसूर बन गया। रकम बाद में वापस भी ले ली। नैब इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहता है। शाहिद खाकान के बेटे समेत तमाम मुल्ज़मान के वकला की केस ट्रांसफर करने की इस्तदा। अब्दुल्ला खाकान के वकील ने कहा, ऑर्डिनेंस अच्छी नीयत से आया या बुरी से, कानून बन चुका तो केस ट्रांसफर ही किया जाए। नैब ने एतराज उठा दिया। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि पुराने केसेस पर ऑर्डिनेंस का इतलाक हुआ तो तमाम सजाएं मुतनाज़ हो जाएंगी। ऑर्डिनेंस का इतलाक पहले से मौजूद केसेस पर होता तो अलग लिखा जाता। केस की समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब को इमरान खान की बी टीम करार दे दिया है। कहा, नैब का मकसद अपोजिशन की आवाज़ को दबाना है। नौडेरो भुट्टो हाउस में बिलावल भुट्टो से रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह ने मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुर्शीद शाह को जेल से रिहाई पर मुबारकबाद दी है। कहा, एहतसाब की आड़ में सियासी इंतकाम पर मबनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो मुल्क में इंतशार को जन्म दे रही हैं। माफियाज की तरफ से धमकाया जा रहा है, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। कराची के नस्ला टावर गिराने के अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए काम का आगाज कर दिया गया। बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस काट दिए गए। कमिश्नर ऑफिस में होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि इमारत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिराने के लिए माहिर कंपनियों की खिदमात हासिल की जाएंगी, जिसके लिए इश्तिहार दिया जाएगा। सासाबरी रिपोर्ट करेंगे। कराची की ज़िले इंतजामिया और दीगर सहूलतें देने वाले इदारों ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन से एक रोज पहले ही नस्ला टावर की गैस, बिजली और पानी के कनेक्शंस काट दिए। अदालती अहकामात पर अमल दरामद के लिए इब्तदाई मरहले में नस्ला टावर को खाली कराया जाएगा। बिजली, गैस और पानी बंद होने पर टावर के मकीन तो सड़क पर आ गए हैं, लेकिन सर्विस रोड पर गैर कानूनी तौर पर नस्ला टावर तामीर करके देने वाला बिल्डर मंजर से गायब है। आपको यहाँ बिल्डर दिखाई दे रहा है? जिन लोगों ने 6-4 महीनों में पैसे नहीं दिए, वो हमें अगले 3-4 दिनों में पैसे देंगे। और इतनी तेजी से आपने कनेक्शन काटा है, इतनी तेजी से आपने बिल्डर से बात की है। पैसे दे दे मेरे को, हम कहीं ना कहीं तो चले जाए। हम रोड पे बैठेंगे क्या? फैमिली को लेके कहाँ बैठे? सुबह बिजली काट दी, गैस काट दी, अभी पानी के लिए लगे हुए हैं। एक हफ्ते में नस्ला टावर की इमारत कैसे गिराई जाए, इस बात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर ऑफिस में बैठक हुई तो बताया गया कि इस काम के लिए इम्प्लोजन की महारत रखने वाली कंपनियों की खिदमात दरकार हैं, जो FWO समेत किसी इदारे के पास मौजूद नहीं। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, माहिर कंपनियों की खिदमात के लिए इश्तिहार दिया जाएगा। हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं फॉर ओनली 2 days। उसके अंदर अगर किसी के पास एक्सपर्टीज़ है कि वो इसको कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स के थ्रू कर सकती है तो वो हमारे पास आए, अपना इंटरेस्ट शो करे। अगर कोई ऐसा नहीं है तो हम लोग इसमें ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, हम लोग डेमोलिशन की एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू कर देंगे। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक नस्ला टावर गिराने के लिए कोई माहिर कंपनी सामने न आई तो मौजूदा तरीके और मशीनरी के जरिए ही इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन इम्तियाज अली और फैसल आगाई के साथ साद साबरी, समा, कराची। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इंकशाफ किया कि उन्हें माफियाज की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया उनके पास धमकियों के वॉइस नोट्स भी मौजूद हैं। अपनी बात वहाँ मुकम्मल नहीं कर पाया, बात सुनी नहीं गई और फिर मुझे बात करने से रोक दिया गया। ये कहा गया आप खामोश हो जाइए। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मुझे पर्सनल धमकियों के मैसेजेस आए। ये जो माफिया बैठी हैं, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करती है तो अदालत जाके स्टे ऑर्डर ले लेती है, डराते हैं, धमकाते हैं। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, माफिया है शहर में, काम करना इस शहर में आसान नहीं है। जहाँ पर भी माफिया है, ये माफिया हमेशा काम में रुकावट बनते हैं। ये माफिया रोकती हैं हमें, जब रोकती हैं कभी अदालत जाके स्टे लेती हैं। पेट्रोल पंप पे स्टे ऑर्डर है, हट्स पे स्टे ऑर्डर है, 3 तलवार के पास एक पेट्रोल पंप है। मेरे ख्याल में माहवार 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए रेंट उसके ऊपर। पता है कितना रेंट मिलता है? 55,000 रुपए महीना। किसने स्टे दिया? मैं कह रहा हूँ माफिया जो है ना, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते
ये लियारी एक्सप्रेस वे पे हैवी ट्रैफिक जैम। बीच की प्रॉपर्टी जो है वो 1400 रुपये महीने पे दी हुई है। हमने कोशिश की जब रेंट बढ़ाया जाए तो अदालत लोग गए और स्टे ऑर्डर लेकर आ गए। या तो मैं कार्रवाई स्टार्ट कर दूं या मैं काम स्टार्ट कर दूं। कार्रवाई करूंगा तो काम नहीं हो पाएगा। भाईजान वजीर आजम ने कहा घबराना नहीं, नस्ला टावर गिराने का फैसला सिंध हुकूमत ने नहीं किया। कि अगर पंजाब की सोसाइटीज रेगुलराइज हो सकती हैं, अगर इस्लामाबाद में बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है, कराची में भी एक माफिया है जो हर वक्त कहती है कि पथारे पे जो लोग हैं ना उनको उठा के फेंक। वो लोग बात करते हैं ये जो आराम से अपनी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हैं। मैं आर्टिकल 25 आइन का जो आर्टिकल 25 है उसको बड़ा मोहतरम समझता हूँ कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स की ज़मीन पर बनाए गए शादी हॉल्स ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी से अपना काम हो नहीं रहा और शादी हॉल्स चला रहे हैं। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कराची एयरपोर्ट की जमीन अलॉट करने के केस की समाअत हुई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के वकील ने कहा कि सिंध हुकूमत सिविल एविएशन अथॉरिटी के 209 एकड़ जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट कर रही है। ये जमीन CAA को 1992 में टर्मिनल के लिए अलॉट हुई थी, मगर सिंध हुकूमत इस जमीन की प्लॉटिंग कर रही है। इस बयान पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के DG और वकील को लेने के देने पड़ गए। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको ज़मीनें एयरपोर्ट के लिए दी गई थी या शादी हॉल चलाने के लिए, आप तो कारोबार कर रहे हैं। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी खाकान मुर्तज़ा ने जवाब दिया कि उन्हें एक्ट के तहत ज़मीनों पर कारोबार की इजाज़त है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा तो फिर अपनी बुनियादी जिम्मेदारी को छोड़कर कारोबार ही कर लें, एयरपोर्ट्स को छोड़ें, शादी हॉल ही चला लें। अपना काम हो नहीं रहा और शादी हॉल चला रहे हैं। चीफ जस्टिस ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सवाल किया कि किस कानून के तहत जमीन अलॉट की। बेंच में शामिल जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से सवाल किया कि सिंध हुकूमत वफाक की जमीन कैसे दे सकती है। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये अलॉटमेंट गैर कानूनी है। अदालत ने मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स की जमीनों पर शादी हॉल्स खत्म करने का हुक्म देते हुए कहा कि एयरपोर्ट की जमीन सिर्फ एयरपोर्ट के मकासद के लिए इस्तेमाल होगी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और सिर्फ स्पीड नहीं, जहानत भी। कीवीज की आधी टीम हारिस रऊफ ले उड़े, 4 ओवर्स में 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। और साथ ही साथ दाद दीजिए फास्ट बॉलर हसन अली को। कप्तान केन विलियमसन का रनआउट कीवीज को दबाव में ले आया। मूवमेंट ऑफ द इनिंग्स आप भी देखिए। RSS की इंतहा पसंद पॉलिसियाँ भारतीय समाज में किस कदर नफरत का जहर घोल चुकी हैं। भारतीय एंकर्स की ज़बान इसका मुंह बोलता सबूत है। भारतीय मीडिया के दिल में इस्लाम और मुसलमानों से नफरत का कितना जहर भरा हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत के मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम थमने का नाम नहीं ले रही। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने इंतहा पसंदों के इस रवैये को जहालत करार दे दिया। भारत के साबिक खिलाड़ी भी शामी के हक में बोल उठे। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान भी भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शामी के हक में बोल उठे। कहा, शामी दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक हैं, अपने सितारों की इज्जत करें। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तान से शिकस्त का सारा नजला भारतीय टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी पर निकाला, जिसके बाद साथी खिलाड़ियों ने शामी के हक में ट्वीट किए और अब मोहम्मद रिजवान ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा, खिलाड़ी को अपने मुल्क के लिए जिद्दोजहद, प्रेशर और कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है। मोहम्मद शामी एक स्टार हैं और दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक हैं। अपने खिलाड़ियों की इज्जत करें। खेल से लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, न कि तकसीम। जनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच से पहले नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ घुटने के बल बैठने से इनकार किया। वो आज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच से बाहर हो गए। आगे बढ़ें, आपको बताएं, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की तेहरान में ईरानी हम मनसब डॉक्टर हुसैन अमीर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पूरे खित्ते के लिए अहमियत रखता है। साहिवाल पुलिस की अनोखी तफ्तीश, बच्ची का कत्ल साबित किया, मुलजिम को गिरफ्तार किया। मकतूल करार दी गई बच्ची की कब्र कुशाई भी कराई गई, मगर बाद में बच्ची अहले खाना को जिंदा मिल गई। पुलिस ने 9 माह तक मुलजिम को हिरासत में रखा, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्क में एक बार फिर पेट्रोल बहरान का खदशा पैदा होने लगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 नवंबर को मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया।
ترجمان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مطابق حکومت نے ڈیلرز کے کمیشن میں اضافے کی یقین دہانی کرائی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ حکومت کی جانب سے وعدہ خلافی کی گئی۔ ترجمان نے کہا کمیشن نہ بڑھا تو 5 نومبر کو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کر دیں گے۔